friend, we will see here third part of our lesson, which is given here, directive principles of state policy. Directive principles of state have been incorporated in the chapter 4 of the Constitution. So directive principles of the state which are included or incorporated in the chapter number 4 in our Constitution. The objective of the directive principles of state policy is to guide the present and future center and state governments in the policy making in various policy related fields. So friend, the main objective or purpose of the directive principles of state policy is to guide the present and future central and state governments for policy making for various fields. These principles are directives, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है तो वो सिर्फ एक मार्गदर्शक है. द स्टेट इज नॉट बाउंड टू फुलफिल देम, यानी कि कोई भी स्टेट उससे बाधित नहीं है कि वो उसको फुलफिल करे. बट इट्स द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to keep these principles in the center for framing any policy. But this is the moral responsibility of the state to keep these principles in the center while they are framing any policy for the state. The main objective of this principle is to see that any political, social and economic justice should be available to all. Such a social structure should be established. So friend, the main objective of this principle is to see that political, social and economic justice should be available to all people, and such a type of social structure should be established in our society and in our country. For the fulfillment of the objectives and aims of the state, the principles serve as a guideline. यानी कि ये जो भी ऑब्जेक्टिव है, एम्स है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए ये जो प्रिंसिपल्स है तो वो प्रिंसिपल्स उनको एक गाइडलाइन पे प्रोवाइड करते हैं. देयर इज नो प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न दिया गया नहीं है. These fundamental principles do not provide any legal support or legal right, यानी कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है तो उनको कोई भी ऐसा लीगल सपोर्ट या लीगल राइट नहीं मिला हुआ है कि जिसके कारण हर एक स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए. देन ऑल्सो द फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द लॉज ऑफ द स्टेट्स, दीज आर फंडामेंटल्स. फिर भी जो भी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनते हैं तो उनके लिए ये एक फंडामेंटल होता है. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टू रूल द रिजीम, दिस प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशंस, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये जो प्रिंसिपल्स है तो वो एक गवर्नमेंट की एक फाउंडेशन के लिए एक उसका बेस मानते थे. इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसके साथ हम जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई गई है तो उसको हम एस्टेब्लिश कर सकें. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना वो एक अधूरी मानी जाती है. Now friend, we will see here next paragraph. The Indian Constitution has included directive principles of state policy in the 4 sections of the amendment. So friend, Indian Constitution has included these directive principles of state policy in the 4 sections. The kind of country that we want to create, the kind of society we want to construct, that vision is reflected in these directive policies. यानी कि हम जिस कंट्री को इमेजिन करते हैं कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए और हम जिस सोसाइटी की इमेजिन करते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह कैसी होनी चाहिए, उसका जो विज़न है
तो वो रिवीजन का रिफ्लेक्शन हमें ये डायरेक्टिव पॉलिसी से मिलती है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली directions given by the Constitution to the Union and state governments to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. So that means friends, the directive principles are actually only directions which is given by our constitution to the union and state governments to adopt such type of policies so that we can establish unbiased society for our country. यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कि जिसका यूज करके हम एक अनबायस्ड सोसाइटी का एस्टेब्लिश हमारी कंट्री में कर सकें। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर थर्ड पैराग्राफ। द प्राइमरी एम of these principles is to establish a social system based on social, economic and political justice। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है तो उसका प्राइमरी और एक इम्पोर्टेंट एम ये है तो हम ऐसी सोशल सिस्टम एस्टेब्लिश कर सके कि जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो सके। These principles are about the implementation of the objectives and ideals presented in the preamble. So friend, whatever objectives and ideals which are presented in the preamble, we can implement these things through these principles. These principles are not included in the Constitution of India. यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है तो वो प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस प्रिंसिपल्स डू नॉट सर्व लीगल राइट्स और लीगल बेकिंग और लीगल यूटिलाइजेशन। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है तो वो प्रिंसिपल्स को किसी भी प्रकार का लीगल राइट्स और लीगल बैकिंग नहीं है कि और एक लीगल यूटिलाइजेशन नहीं है कि जिसके कारण हर एक स्टेट को ये कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना पड़े। For proper administration of the state, these principles are channelized। यानी कि स्टेट का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके इसके कारण ये जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स एक इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा कर रहा है। These principles incorporate such rights as are required for the overall development of mankind। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है तो उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जिसके कारण मैनकाइंड जो है, ह्यूमन काइंड जो है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। For the modification of economic policy, there are certain principles which are given below. First number, equal distribution of wealth and resources among all classes for the welfare of the citizens. The wealth and resources should be distributed equally among all classes for the welfare of the citizens as well as society. Second number, assets and production of resources should not be distributed to certain group or section. This should be administered by the state। यानी कि जो भी एसेट्स है और जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है तो वो किसी एक ग्रुप में या किसी एक सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क for both men and women। So the state government should be arrange such type of situation where men and women both can be get equal pay for equal work। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी भी सिचुएशन अरेंज करनी चाहिए कि जहाँ पे मैन और वीमेन दोनों को जो वेजेस है तो वो वेजेस समान मिल सके, जहाँ पे काम भी एक कॉमन हो या काम भी एक ही हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबर्स वर्किंग एट प्लेसेस शुड बी क्रिएटेड।
Because of financial constraints, the men, women, and young children working at unhygienic places or where health matters are retorted should not be allowed to happen. यानी कि जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो उनका वर्किंग प्लेस है तो वहाँ पे उनकी हेल्थ प्रॉपर केयर हो सके, तो ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा जो एनवायरनमेंट है तो वो क्रिएट भी करना चाहिए। और जो भी पर्सन, जो भी वीमेन या जो भी चाइल्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण काम करते हैं तो वहाँ पे भी उनका जो हेल्थ है तो वो हेल्थ प्रॉपर मेंटेन हो सके, तो ऐसी सिचुएशन जो है तो वहाँ अरेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबर्स। यानी कि जो स्टेट है तो वो स्टेट को भी प्रमोट करना चाहिए कि जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है तो वहाँ पे लेबर्स के बीच में एक कोऑपरेशन बना रहे और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल abandonment and to live in a healthy and dignified environment. These principles should be developed by state। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे जो भी चिल्ड्रन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, साथ में उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो फ्रीडम है तो उनका भी ठीक से डेवलपमेंट हो सके। ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसी जो फैसिलिटीज़ है तो वो अरेंज करे। इसके लिए जो भी स्टेप स्टेट गवर्नमेंट को लेने चाहिए तो वो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू वीमेन। वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेच्युइटी and other legal rights should be included in the policy। यानी कि जो भी वीमेन की डिलीवरी होनी हो तो उनको अपने काम के प्लेस से उनको कुछ रिलीफ या कुछ जो लीव है तो वो भी उनको मिलनी चाहिए। और साथ में जो भी वर्कर्स है तो वो वर्कर्स का इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उनको जो बोनस है, मैटरनिटी लीव है, ग्रेच्युइटी है और कुछ ऐसे लीगल राइट्स है तो वो भी पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए कि जिसके कारण जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं वो चाहे मैन हो या वीमेन हो, दोनों को फाइनेंशियली सब तरह से उनको बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज and other useful milk producing cattle, a draft should be drawn for the livestock breed like donkeys, bullocks, cows for halting the slaughter. So the states should try to develop for agriculture as well as an animal husbandry in a modern way, and the states should be also tried to stop slaughtering activities for cows, donkeys, bullocks, cows, so that the milk producing cattle can be retained। यानी कि जो भी स्लॉटिंग एक्टिविटी है तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए कि जिसके कारण जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है तो उसको हम बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल। States should organize free legal services to the desired citizens who are financially feeble as well as incapable in getting so। यानी कि जो राइट्स है तो वो राइट्स सबको इक्वली मिले, तो ऐसी अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट also organize to those people who are feeble as well as incapable to getting these things। यानी कि जो भी सिटीजन है, जो भी पीपल है कि जो इनकेपेबल है या फीबल है, यानी कि वो
ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनको लिए कुछ जो हेल्प है तो वो हेल्प स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कि जिसके कारण उनको भी अपनी जो लीगल सर्विसेज है तो वो लीगल सर्विसेज उनको मिल सके। नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। Weaker sections of the society, that is the scheduled class, scheduled tribe and backward class, educational and economic rights to be conferred, which should be taken in concern by the state. They should be protected against social exploitation and injustice. So friend, those people who are belong from scheduled class, scheduled tribe and backward class, the state government should be tried carefully to maintain their educational and economic rights by the state government. They should also protected against the social exploitation and injustice. So this is the also responsibility of the state government. Next paragraph. Uniform civil code should be the concern for all the citizens of the country, thereby dispersing and administering justice to all, which should be taken in concern by the state. The states should also try to uniform civil code for justice. Steps should be taken for social justice in matters of marriage, divorces, adoptions, juvenile assets and properties by the state. The state should be take such a step so that the social justice in matter of marriage, divorces, adoptions, juvenile assets एंड प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है तो वो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिनके कारण उनको जो सोशल जस्टिस है तो वो सोशल जस्टिस उनको मिले, जैसे कि मैरिज की मैटर हो, डिवोर्स की मैटर हो, एडॉप्शन, जुवेनाइल एसेट्स और प्रॉपर्टी, कोई भी मैटर है तो उसमें उनको जो सोशल जस्टिस है तो वो मिल सके, ऐसी अरेंजमेंट भी करनी चाहिए। नेक्स्ट, द स्टेट शुड मेक प्रोविजंस फॉर द सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इलनेस और inauspicious situations, poverty, etc. The state also should arrange such type of provisions for the support and education in matters as well as right to employment, old age, illness और inauspicious situation of poverty, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको ऐसे प्रोविज़न भी बनाने चाहिए कि जिसके कारण जो भी लोग हैं तो उनको एजुकेशन की मैटर हो तो उसमें उनको सपोर्ट मिल सके, जो एम्प्लॉयमेंट की मैटर है तो उसमें भी उनको सपोर्ट मिल सके, ओल्ड एज, इलनेस और कोई भी ऐसी इनऑस्पिशियस सिचुएशंस यानी कि कोई भी ऐसी अशुभ सिचुएशंस खड़ी होती है, पॉवर्टी खड़ी होती है तो उनको हेल्प मिल सके, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। Now friend, we will see here third number, principles related to the international and political policies. First number, Panchayati Raj should be established by the state, for which proper leadership, officers and financial aid should be provided to conduct the work in free way. So that means friend, the state government should be established Panchayati Raj for proper leadership, officers and financial aid should be provided in the work in free of way. Second number, the state should separate its services from corporate mindedness and it should be in liberty so that judges can be impartial, fearless and courageous in rendering judgments. So the state should also separate to the judges from the services with corporate mindedness so that the judges can be give impartial, fearless and courageous in the judgments, यानी कि जो भी न्याय तंत्र है तो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सेपरेट कर देना चाहिए कि जिनके कारण जो भी जजेस है तो वो
वो अपना जो काम है वो काम इम्पर्शियल, फियरलेस और करेजियस यानी कि हिम्मतपूर्वक वो अपना काम जो है तो वो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, टू एस्टेब्लिश fair relation between nations and to increase respect of international law. So the state government should also make such type of attempts so that the international peace can be maintained as well as the security, then the fair relation between nations will be maintained, and स्टेट गवर्नमेंट अल्सो रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे भी अटैम्प्ट्स या एफर्ट करने चाहिए कि जिसके कारण जो इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है और दूसरी कंट्री के साथ जो एक फेयर रिलेशन है तो उसको मेंटेन कर सके, और साथ में जो भी इंटरनेशनल लॉ है तो उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे, तो ये भी करना चाहिए। नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर 4 नंबर, Principles related to education and cultural policies. Free and compulsory education for the children belonging to the age group between 6 to 14 years of age is mentioned in the Constitution, and it was the fundamental right to education. So friend, earlier we have discussed about that those children who belong the age group between 6 to 14 years, they have free and compulsory education right, which is incorporated or mentioned in our constitution, and it was also considered as a fundamental right to education. Next paragraph, to preserve and protect state heritage, artifacts, monuments, cultural places, art and buildings, the states should protect these cultural heritage places from distortion, robbery, transitioning, disposal and deterioration. So that means friends, the state government should protect and preserve such type of heritage, artifacts, monuments, cultural places, art and buildings from the distortion, robbery, transitioning, डिस्पोजल एंड डिटेरिएशन। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको ये भी करना चाहिए कि जो भी हेरिटेज है तो वो हेरिटेज को हम बचा सके, उसको प्रिजर्व कर सके। जो भी मॉन्यूमेंट्स है, कल्चरल प्लेसेस है, बिल्डिंग्स है, तो उसको जो भी रॉबरी है, डिस्टॉर्शन है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये भी एक जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको करना चाहिए। द स्टेट शुड हैव द एम of preserving the cultural and historical legacies. So the state should also have the preservation of cultural and historical legacies, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है तो उनका ये भी उद्देश्य होना चाहिए, उनका ये भी पर्पोज होना चाहिए कि जो भी कल्चरल और हिस्ट्रिकल लेगेसीज है तो उनको हमें प्रिजर्व करनी चाहिए। नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर 5th नंबर, Principles related to health policies. First number, public wellness and hygiene should be provided along with provision for better nutrition and health amenities for the people by the state. The state should provide public wellness and hygiene. Along with that, the state government should also make such type of provision that by that better nutrition and health amenities of the people can be maintained. Second number, prohibition on harmful drugs, harmful soft drinks and drugs should be done by the state. This should be further banned as it will create health hazard for the public. So the state government should prohibit such harmful drugs, harmful soft drinks or drugs which can be harm the health of the people. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे भी प्रोहिबिशन रखने चाहिए कि जिसके कारण जो लोगों की जो हेल्थ को नुकसान होती है, जैसे कि हार्मफुल ड्रग से, कुछ हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक से या ड्रग से, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक हार्मफुल है। तो ऐसे ड्रग्स के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिशन रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
to preserve the environment with latest amendments, thereby taking care of the forest and vegetation should be the policy of the state. So that means friends, the state government should also try to preserve the environment as well as to protect the forest and vegetation, and these policies should be framed for the state government. Next point, hygienic environment should be maintained in the working areas of laborers. They should have social and cultural development at the time of leisure. Entertainment provisions should be there to maintain mental health. These provisions should be kept in concern by the state. यानी कि जहाँ पे भी जो लेबर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो एनवायरनमेंट है तो वो एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट बना रहे या हाइजीनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सके, तो ऐसे भी जो स्टेप्स है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को लेने चाहिए। और साथ में उनका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो सके ऐसे भी एफर्ट करने चाहिए। और साथ में उनकी जो मनोरंजन की यानी कि जो एंटरटेनमेंट की जो फैसिलिटीज़ है तो वो भी मेंटेन करनी चाहिए कि जिसके कारण उनका जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ प्रॉपर मैनेज हो सके। तो ये सब जो है तो वो सब एक प्रोविजंस में दिया गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उनको इंक्लूड किया गया है। Thus, these principles provide guidance to the state to take care lead towards establishment of equal justice and social order without any exploitation। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है तो वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक गाइडेंस देती है कि जिनके कारण इक्वल जस्टिस और सोसाइटी का जो ऑर्डर है तो वो प्रॉपर मैनेज हो सके और वो भी किसी भी प्रकार का एक्सप्लोइटेशन के बिना। The directive principles envisage future society. They guide us to the directions that we should go and lead us to our destination। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से तो वो हमारी फ्यूचर सोसाइटी के लिए एक रास्ता दिखाती है और साथ में वो हमें गाइड करती है, डायरेक्शन भी दिखाती है कि जिसके कारण जो हमारी डेस्टिनेशन है तो वो डेस्टिनेशन को हम अचीव कर सकें। The upliftment of society and protection of society will be taken care by the state। यानी कि जो भी सोसाइटी है तो उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, साथ में उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को उनकी जो केयर है तो वो भी करनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सटेंड स्टेट लीडरशिप। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है तो वो स्टेट लीडरशिप को लिमिट में रखती है, यानी कि उनको कंट्रोल में रखती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से तो वो स्टेट गवर्नमेंट की लीडरशिप को थोड़ा और बढ़ाती है, यानी कि उसको एक एक्सटेंड देती है। फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी while directive principles of society and finance imparts aims for interrelation of democracy। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है तो वो डेमोक्रेसी का जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस बनाती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी में होती है तो वो डेमोक्रेसी में सबके बीच में इंटर रिलेशन कैसे बना रहे तो उसका एक एफर्ट जो है, इसका एक डायरेक्शन जो है तो वो उसमें दिया जाता है। देयर इज नो अपोजिशन बिटवीन देम, बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर। यानी कि दोनों के बीच में यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कुछ भी अपोजिशन नहीं है, मगर दोनों जो है तो दोनों एक साथ अपने लिए काम करती हैं, यानी कि दोनों एक साथ पैरेलल वर्क करती हैं।